determinants. So let us start with some CBSE asked problems, and these problems are frequently asked in examination. First problem, prove that determinant a plus b, a plus b plus c, 2a, 3a plus 2b, 4a plus 3b plus 2c, then 3a, 6a plus 3b, 10a plus 6b plus 3c is equal to a cube. This question was asked in CBSE 2012. Dear students, in order to prove such results on determinants based on properties, we need to maintain certain trick in our mind. अगर हम डिटर्मिनेंट जो एल्जेब्रिक नेचर का हो और उस एल्जेब्रिक नेचर के डिटर्मिनेंट में मल्टीपल टर्म्स, एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स हो अगर, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे डिटर्मिनेंट में हम लोग सबसे पहले किसी एक रो या किसी एक कॉलम में दो जगह जीरो जनरेट कर दें। दो जगह जीरो जनरेट करने के बाद केवल हमें एक पॉइंट पर डिटरमिनेंट को खोलना पड़ता है। तो उसको करने के लिए ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम एक ऑपरेशन यहाँ पर लगाते हैं, R2 changes to R2 minus 2R1 and R3 changes to R3 minus 3R1। यहाँ 2a है, इसका डबल करके माइनस होगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ a है, यहाँ 3a है, 3 टाइम्स करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो एक कॉलम में हमारे पास a 0 0 आ जाएगा तो हमारा डिटरमिनेंट बहुत इजीयर हो जाएगा। तो लेट अस सी, इसमें R1 चेंज नहीं होगी तो राइट इट एज इट इज, a plus b plus c, 2a minus 2a 0, इसका डबल ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन मेंटली होना है, इसलिए यू हैव टू बी very careful because a single mistake will destroy all the solution. 2 times a plus 2 times b will be subtracted from here, so you will get only a, 3a minus 2a a, 2b minus 2b 0. Now r2 minus again 2r1, 4a minus 2a, 2a, 3b minus 2b plus b, 2c minus 2c 0. So we will get 2a plus b here only. R3 minus 3R1. So 3a minus 3a 0. 6a plus 3b minus 3a 3b. 3a plus 3b. 6a minus 3a 3a और 3b minus 3b 0. 3a subtracted from 10a will give you 7a. 3b subtracted from 6b will give you 3b, and 3c minus 3c will become 0. So this is the result after application of these two operations. Apply these operations very carefully. Now this determinant has got 2 zeros in first column. So if we will expand through फर्स्ट कॉलम, इट विल गिव यू ए, रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, a 2a plus b, 3a 7a plus 3b, remaining terms will be 0. Simply write here expanding along c1. So let us see what we get here. 7a square plus 3ab minus 6a square minus 3ab. Again 3ab is cancelled. A multiplied by 7a square minus a square, that is a cube is equal to, right?
This was the problem where we need to apply only two operations for second row and third row, and easily you got the result a cube, which is the equal to right hand side. So very simple problem was this. Another problem, let us take second question. This question was asked in 2004, 2006, 2007 and 2011. We have to prove here determinant a minus b minus c, 2b, 2c, 2a, b minus c minus a, 2c, 2a, 2b, c minus a minus b is equal to a plus b plus c whole cube. The right hand side is a plus b plus c whole cube. That expression we have to just think over it. What property, with what property should we start in order to get the result? Okay, you might have thought of about the property. Let us see how will we proceed here. We want a plus b plus c whole cube in the right hand side. So solution take left hand side, and I am not repeating the step, directly I am applying the property. a plus b plus c कैसे आएगा? तो ध्यान से देखिए, अगर 2b यहाँ ऐड हो जाए और 2c भी ऐड हो जाए तो माइनस b प्लस 2b प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस c. So first property we got here, r1 changes to r1 plus r2 plus r3. This property will help you in order to get a plus b plus c in the first row. So these two when will be added here, you will get a plus b plus c. These two when will be added here, you will get a plus b plus c. और इन दोनों को भी यहाँ ऐड करने से a plus b plus c मिलेगा. Remaining steps will remain same. 2b, 2c, 2c, c minus a minus a. Now take a plus b plus c common from first row. You are getting 1, 1, 1, 2b, b minus c minus a, 2b, 2c, 2c, c minus a minus a. Now again, what I said in first question, अगर हमारे पास तीनों जगह 1 आ गया तो दो जगह हम लोग 0 क्रिएट कर सकते हैं by applying the property. See what property we will apply? C2 changes to C2 minus C1. C3 changes to C3 minus C1. बच्चों यहाँ एक बात आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए. देखिए आपने जब दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाई है तो आप देख रहे हैं दोनों जगह आपने C1 को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब C1 विल रिमेन अनचेंज्ड. एक बार में C2 और C3 ये सजेस्टिव होता है कि जैसे C2 changes to C2 minus C1 and C3 changes to C3 minus C2 ना लगाएं. कारण पहली ऑपरेशन में C2 चेंज हो रहा है और दूसरे में C3 में से C2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है. तो क्वेश्चन मार्क ये होता है कि आपने पहले वाला C2 सब्ट्रैक्ट किया या चेंज होने के बाद जो नया C2 आएगा उसको सब्ट्रैक्ट किया. दोनों चीजों को क्लियरली डिसाइड करने में निश्चित रूप से कंफ्यूजन क्रिएट होगा. इसलिए ध्यान रखें कि एक बार में कोई एक रो या कॉलम अनचेंज अनअफेक्टेड रहना चाहिए. तो C2 minus C1 अगर हम करेंगे तो C1 will remain unchanged, 2b 2c, 1 minus 1 0, b minus c minus a minus 2b करेंगे तो minus b बचेगा, यानी minus times a plus b plus c बचेगा. And 2c minus 2c again you will get 0 here. Then 1 minus 1 again 0.
2b minus 2b 0 and this minus 2c करेंगे तो c minus 2c minus c minus sign common a plus b plus c. In this way again now a plus b plus c was common here. तो a plus b plus c यहाँ से सेकेंड कॉलम से a plus b plus c बाहर निकालिए और थर्ड कॉलम से भी a plus b plus c बाहर निकालिए. What you are getting inside the determinant 1 2b 2c 0 minus 1 0 0 0 minus 1. This is a plus b plus c whole cube. अब चूंकि रिजल्ट a plus b plus c whole cube ही लाना था, इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बचा है उसकी वैल्यू 1 आना चाहिए. इसको फर्स्ट रो से खोल दीजिए तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 1 0 0 माइनस 1 फिर माइनस 0 प्लस 0. यहाँ लिख दीजिए एक्सपांडिंग अलोंग R1. तो दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल क्यूब और ये अंदर 1 माइनस 0 यानी 1 ही आएगा. सो दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल क्यूब दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Hence proved. In this way, applying the properties systematically, you can achieve the results very well. I hope you understood how the properties are being applied here. तो इसको बहुत ध्यान से एक बार पुनः देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम सीक्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई करते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हमारे दिमाग में होना चाहिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते समय. अगर ये समझ में आ गया तो फिर डिटर्मिनेंट का कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर. Example 3. This question was asked in 2006 and 12. We have to prove here determinant b plus c, b c, a c plus a, c a b, a plus b is equal to 4abc. बहुत ध्यान से इसके ऊपर विचार करिए कि किस प्रकार आप प्रोसीड करेंगे. सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड. अब जो रिजल्ट हमको लाना है उसमें एक न्यूमेरिकल फैक्टर है 4 एंड 3 फैक्टर्स आर अलजेब्रिक नेचर स्मॉल a b c. तो ध्यान से देखिए यहाँ पर b प्लस c है. ओके, इन दोनों को यदि ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा. तो दूसरी बात, इसमें से ये दोनों ऐड होके सब्ट्रैक्ट होंगे तो केवल c बचेगा, s कट जाएगा. तो पहला ऑपरेशन r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 प्लस r3. ऐसा भी लिख सकते हैं या r1 माइनस r2 माइनस r3 भी लिख सकते हैं. ये दोनों ही लिखने के तरीके सही होंगे. तो b और c ऐड होंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे 0. ये दोनों सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा. अब a माइनस ये करेंगे तो आएगा माइनस c और उसमें से फिर c माइनस होगा तो माइनस 2c. a में से b माइनस होगा तो a माइनस b, ये भी माइनस होगा तो a कट जाएगा माइनस 2. What can be taken common? फर्स्ट रो से माइनस 2 कॉमन निकल रहा है तो बाहर निकाल लीजिए. यू आर गेटिंग 0 b c, c c प्लस a,
C, B A प्लस। एक फैक्टर आपको कॉमन मिल गया और ये फैक्टर कॉमन मिलने के बाद अब हमारा प्रयास होगा कि दो जगह जहां एडिशन वाली टर्म्स है वो सिंपलर हो जाए। तो आप R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करने से क्या रिजल्ट मिलेगा? तो यहां पर हम देख रहे हैं we are applying property R2 changes to R2 minus R1 और R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर C कट जाएगा, A बचेगा और R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B कट जाएगा, A बचेगा। तो R3 changes to R3 minus R1। Okay, so let us do the operation 0 C B as it is। B minus 0 B, C plus A minus C A, B minus B 0, C minus 0 C minus C 0, A plus B minus B again। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों स्टेप्स में कुछ कॉमन नहीं है और इन दोनों में भी कॉमन नहीं है, इसलिए फर्दर ऑपरेशन करने के लिए इसको एक्सपांड कर देना ही उचित होगा। फर्स्ट रो से खोल दीजिए तो 0 के साथ खुलेगा, माइनस C के साथ खोलेंगे तो 0 के साथ खोलने से A 0 0 A होगा, C के साथ खुलेगा तो B 0 C A B 0 C A प्लस B के साथ खुलेगा तो B A C 0। Write down expanding along R1. So this is equal to minus 2 and let us see what we get inside here 0 minus C into AB minus 0 plus B into 0 minus AC. So we are getting minus 2 inside minus ABC minus 2 ABC, that is equal to 4 ABC, which is equal to right hand side, hence true। So in this way, applying a sequence of properties, you are getting the results easily। I hope the solution is very much clear to everybody। So with the help of these illustrations, may I hope you people will be able to solve multiple problems। So we are switching to our next topic, area of ट्रायंगल। इन क्लास 10 आपने फार्मूला इस प्रकार से सीखा था इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू, या यहाँ पे वो मॉडुलस था, x1 y2 minus y1 plus x2 y3 minus y1 y2 minus y3 plus x3 y1 minus y1। This was the absolute value of this expression because area can't be negative। So अगर आखिरी में माइनस
समझने का प्रयास करें इसको कि 1/2 इंटू, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये x1 के साथ y2 माइनस y3 है, तो y2 y3 1 1 कैसा हो सकता है? डिटर्मिनेंट यस, प्लस अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन कर लूं तो x2 और इसको y1 y3 1 1 लिख सकते हैं, प्लस x3 इसको y1 y2 1 1 लिख सकते हैं। देखिए इस डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो y2 माइनस y3, इसका y1 माइनस y3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो y3 माइनस y1। इसका मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ये किसी डिटरमिनेंट का एक्सपांशन है x1 के साथ, तो क्या डिटरमिनेंट होगा वो ध्यान से देखेंगे। x1 इसके साथ y2 1 1 1 1 आता है, यानी यहाँ x2 यहाँ x3 यहाँ y1 यहाँ y2 यहाँ y3 यहाँ y1 1। देखिए x1 से खोलेंगे तो y2 माइनस y3, y1 से x2 से खोलेंगे तो y1 माइनस y3 और x3 से खोलेंगे तो y1 माइनस y। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इज वेरी मच क्लियर कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, जब इस फार्मूले से डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है और वो आप 10th में सीख चुके हैं, तो फिर डिटर्मिनेंट लगाने का क्या औचित्य है? डिटर्मिनेंट लगाने का औचित्य ये है कि जब हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास वी आर फ्री टू यूज मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू सिंप्लीफाइड। अगर बड़े बड़े मान या कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, इन दैट केस वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज एंड वेरी सिंपली वी कैन गेट द रिजल्ट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू वर्ड यूज करना जरूरी है, क्योंकि वो एरिया शुड बी पॉजिटिव रहता है। सो अब यहाँ एक चीज और देखें कि if points A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 are collinear, then area of triangle ABC should be equal to 0. Do you agree? अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 शुड बी इक्वल टू। अगर यही वाला डिटर्मिनेंट आपको कुछ किताब में ऐसे लिख के मिलता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equal to 0, तो don't be afraid, don't be confused। कारण इस अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट वर्जन्स, आपको जो दिमाग में आता है। लेकिन एक बात में कोई भी एक ही क्रम यूज करें, एक प्रॉब्लम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए कंडीशन हमको मिल गई कि दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0, और इस कंडीशन के आधार पे हम लोग अननोन वर्टिसेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले एक छोटा सा सवाल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला करेंगे। एग्जांपल 1, एरिया find the area of triangle with vertices -3, 5, 3, -6 and 7, 2 using that's
डिटरमिनेंट का प्रयोग करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। बहुत ही सरल सवाल। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। कैसे अरेंज करना है? सबके x x कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दो -3 3 7। फिर सेकेंड रो में सबके y y कोऑर्डिनेट्स लिख दो 5 -6 2। और थर्ड रो में 1 1 1 मेंटेन करना है। और इसके बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हाफ इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। अब ये जो डिटरमिनेंट है बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें दो जगह जीरो क्रिएट कर लें तो क्या होगा? इसमें हम करते हैं C2 - C1, C2 changes to C2 - C1, C3 changes to C3 - C1. तो C1 will remain unchanged. C2 - C1 6 -6 -11 1 -1 0 7 -3 10 2 - 5 -3 1 -1 2। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू शब्द क्या होता है हटा दो, मॉडुलस लगा दो, क्योंकि अब थर्ड कॉलम से एक्सपांड करेंगे तो ये पोजीशन क्या हुई 3 1 यानी प्लस से आएगा। तो 1 से केवल खुलेगा, तो 1 से खुलने पर क्या बचेगा? ये वाली रो कॉलम और वाली रो छोड़ देना है। तो डिटरमिनेंट बचेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 6 -11 10 -2। तो प्रॉपर्टी लगाने से ये होगा कि 3/3 की जगह आप 2/2 में आ गए। यहाँ पर लिख दो एक्सपांडिंग अलोंग R3। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी उसको मॉडुलस में लिख ले -18 + 22 दैट इज इक्वल टू 6 3 का 18 and 10 11 10 का 110 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 100। तो 110 -18 करना है तो 100 में डिवाइड किया 92 46 स्क्वायर। चूंकि कोई यूनिट हमें नहीं दी गई है इसलिए आंसर में स्क्वायर यूनिट्स वर्ड यूज करेंगे। दैट विल कंप्लीट आवर आंसर। सो दिस इज how area of triangle can be found with the help of determinants. One more type of problem can be asked from this topic. Example, find the value or values of K if the area of triangle with vertices -2, 0 0, 4 and 0, 3 is 4 square units. Area is 4। ध्यान से देखिए, we have half multiplied by absolute value of determinant -2 0 0 0 4 K 1 1 1 is equal to 4। इस एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू -2 0 0 0 4 K 1 1 1 एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है और ये 2 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। और अगर मैं एब्सोल्यूट शब्द हटा दूं इट मींस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन कम एज प्लस और माइनस है। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे यहाँ भूल जाते हैं
अब ये डिटरमिनेंट में ऑलरेडी दो जीरो है तो रो में, तो इसको डायरेक्टली एक्सपांड कर दीजिए। -2 से खोलेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा 4k11 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8 implies 4 minus k इज इक्वल टू प्लस माइनस, या -2 से डिवाइड कर दो तो माइनस प्लस 4 implies ये उधर जाएगा तो 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू k implies k इक्वल टू 8 और 0। अब एक प्रकार का ये सवाल है। तीसरा प्रॉब्लम जो इसमें पॉसिबल है वो होता है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स के ऊपर। या तो 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए दिया जाएगा तो सिंपली यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट एंड इफ डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इन केस इट इज अलजेब्रिक नेचर प्रॉब्लम, जैसे if P1 Q1 P2 Q2 and P1 plus P2 Q1 plus Q2 are collinear, show that P1 Q2 is equal to P2 Q1. Solution: since given points are collinear, therefore determinant P1 P2 P1 plus P2 Q1 Q2 Q1 plus Q2 1 1 1, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देना उचित होगा। R3 माइनस या R1 माइनस R3 और C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3 से हम लोग को केवल इसमें से एक पार्ट कम करना है, 2 जगह 0 लाना है। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग, C3 माइनस चेंजेस टू C3 माइनस C2 कर देंगे ओनली। तो ये कितना हो जाएगा? P1 Q1 1, C2 भी अनचेंज रहेगी, P2 Q2 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल P1 बचेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल Q1 बचेगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। और कोई कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज थर्ड कॉलम से खोल दीजिए तो 1 के साथ क्या आएगा? ये वाला रो कॉलम रहेगा P2 P1 Q2 Q1 P2 P1 Q2 Q1 माइनस दूसरा 1 से खोलेंगे ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो P1 Q1 P1 Q1 तो P1 Q1 P1 Q1 और तीसरा 0 से खोलेंगे तो 0 ही रहेगा। ये वाला डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या? P2 Q1 minus P1 Q2 equal to 0, which implies P1 Q2 is equal to P2 Q1. That was to be proved. Hence, तो कोलिनियरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक करना है तो केवल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, इट शुड बी 0, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। Similarly, with the help of this concept, you can also find the equation of line passing through 2 points. ध्यान से देखिए कैसे होगा। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2। इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट अज्यूम कर लीजिए pxy। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो डिटरमिनेंट 0 होगा। Apply that property and simplify, you will get
relation like 2x plus 3y is equal to 7, which is the equation of 9. So dear students, I hope now you will be able to solve multiple problems based on proofs on determinants using properties of determinants and problems based on area of triangle. So that's all from my side. In our next class we will learn solving system of linear equations with the help of determinants and matrices. Thank you.